So let's talk about conformational isomers, very important topic. So we'll start with the basics and then we will go for the conformations of ethane, propane, butane and then cyclohexane and so on. So conformational isomers, it is shown by isomers that can be interconverted through rotation about single bond. So if you check out geometrical isomers, there was restriction of rotation between the double bonds, but here it is single bond, so you can interconvert easily. The infinite numbers of momentary arrangements of the atoms in space which results through rotation of single bond are called as conformations, rotational isomers or conformers, or you can say constellations or rotamers. So always remember all these terminologies are same, but I will be using conformers over here. Alright, next, pure conformer cannot be isolated in most cases because the molecules are constantly rotating through all the possible conformations. For example, if we talk about methane, right, it has a tetrahedral geometry, single bond, so you cannot actually isolate a single 3D molecular configuration or conformer, right? So it's very difficult, but what is important here is, the important thing is staggered and eclipsed form. Out of infinite number of possible conformations of ethane, only two are important, that is staggered and eclipsed. So अभी Sawhorse structure के बारे में बात करते हैं before talking about the Newman structure. So what is Sawhorse structure? So we are talking about ethane, that is CH3, single bond CH3. So let's say this is the front carbon and let's say this is the back carbon. So ये रहा आपका front carbon जिसके पास 3 CH3s है and ये रहा back carbon. Now this form is called as eclipsed because ये जो हाइड्रोजन है front carbon पे, अगर आप ध्यान से देखो, इसको एक के पीछे एक देखो, this structure is something like this. Okay, ये front carbon है, ये back carbon है, but ये थोड़ा सा इस तरीके से ऐसा bent है ना? So एक दूसरे के पीछे है, like it's like they are overlapping. So here the angle is 0 degree. Which angle? Dihedral angle. What is dihedral angle? Angle between CH bonds of the front carbon atom and the CH bond of the back carbon atom. जैसे इस केस में फ्रंट कार्बन CH इस तरीके से बन रहा है, फ्रंट कार्बन CH, तो दोनों H अगर आप देखो तो एंगल क्या है? 0. अगर मैं फ्लिप कर दूं बैक कार्बन को और हाइड्रोजन नीचे लेके चले जाऊं, सो इट इज कॉल्ड एज स्टैगर्ड. यहां पर एंगल कितना है? 60 डिग्री. एनीथिंग एल्स, लेट्स से 59, 42, व्हाटएवर, ओके, एनीथिंग एल्स विल बी कॉल्ड एज व्हाट? स्क्यू. क्लियर? So these are few terminologies we have to remember. Now Newman projection formula. So this structure is called as eclipsed. Now कैसे बनाया जाता है Newman projection formula? Let's say we have CH3, CH3. And let's say this is your front carbon. तो front carbon को मैं ऐसे डॉट की तरह रिप्रेजेंट करूंगा और उसके पास कितने हाइड्रोजन है? 3. 1, 2, 3. नाउ बैक कार्बन को वापस से डॉट से रिप्रेजेंट कर नहीं सकते क्योंकि फिर तो दिखेगा ही नहीं बैक कार्बन. सो बैक कार्बन को व्हाट वी डू इज, हम लोग ऐसे सर्कल की तरह रिप्रेजेंट करता है, राइट? एंड मुझे एक्लिप्स फॉर्म बनाना है, मतलब फ्रंट कार्बन का हाइड्रोजन के एग्जैक्ट पीछे दूसरा हाइड्रोजन, बट वो तो फिर दिखेगा ही नहीं ना, इसलिए थोड़ा सा बाजू में इस तरीके से हम हाइड्रोजन को ड्रॉ करते हैं, राइट? और वो भी सर्कल के ऊपर से, ना ही कि बीच के डॉट से. So this is called as your Newman projection formula of ethane, and to be more specific, this is eclipsed form. Right? So here the angle is 0 degree, here the angle is 60 degree, and this is called as what? Staggered. Any other angle will be called as what? Skew. So this is all about ethane. Now if you talk about the graph for the energy, potential energy and stability of ethane configurations, let's have a look. So on the y-axis we have potential energies, and on the x-axis we have different dihedral angles. So let's talk about 0 degree. 0 degree. If you see, जब वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एक के पीछे एक है, एक्लिप्स्ड है, तो बॉन्ड और बॉन्ड के बीच में रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा.
रिपल्शन अगर ज़्यादा है मतलब मॉलिक्यूल में एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज एनर्जी एंड स्टेबिलिटी आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. सो व्हेन दे आर eclipsed it will have highest energy at the top. जब हमने हाइड्रोजन को 60 डिग्री पे रखा, दैट इज द स्टैगर्ड फॉर्म, तब तो स्टेबिलिटी बहुत अच्छी खासी होगी, क्योंकि बॉन्ड में डिस्टेंस ज़्यादा है, एंगल ज़्यादा है, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा. सो एनर्जी का ग्राफ इस ये पॉइंट पे आएगा. अगेन वापस से 60 डिग्री रोटेट कर दिया तो यू विल गेट एक्लिप्स्ड अगेन ग्राफ ऊपर की तरफ गया और अगेन ग्राफ नीचे की तरफ गया. सो इफ समवन आस्क यू कि कौन से डाइहाइड्रल एंगल में इथेन इज मोर स्टेबल, सो आपका आंसर क्या होगा? इट इज 60 डिग्री एंड 180 डिग्री. उसमें पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ लोवेस्ट है, एनर्जी लोवेस्ट है मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा है. सर एक्चुअली में जो एक्लिप्स्ड है एंड स्टैगर्ड है उसमें एक्चुअली कितने एनर्जी का डिफरेंस है? सो आई वुड से 3 किलो कैलोरीज पर मोल का डिफरेंस है. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड. Now, as ethane rotates towards an eclipsed conformation, अभी let's say ये staggered है, let's say इस तरीके से staggered है, now they are moving closer, they are stable, वो लोग unstable molecule की तरफ move कर रहे हैं. Its potential energy increases and there is a resistance to the rotation. This resistance to the twisting means the torsion is called torsional strain. Very important. अगर बॉन्ड को रोटेट करने में तकलीफ आ रही है, राइट, वो स्ट्रेन आ रहा है, उस स्ट्रेन को बोलेंगे टॉर्शनल स्ट्रेन. और वो कितना होता है मैंने पहले ही बताया, 12.6 किलो जूल्स पर मोल या तो फिर 3 किलो कैलोरी पर मोल. सो द टॉर्शनल स्ट्रेन इन ईथेन द वैल्यू इज 3 किलो कैलोरीज पर मोल एंड द एनर्जी रिक्वायर्ड इज कॉल्ड एज टॉर्शनल एनर्जी. ऑलराइट, फैंटास्टिक. नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोपेन. प्रोपेन में लेट्स से ये फ्रंट कार्बन है, फ्रंट कार्बन में ये रहा फ्रंट कार्बन, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3. बैक कार्बन में ड्रॉ कर देता हूँ. नाउ बैक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और एक CH3 है, तो मैं पहले CH3 बना लेता हूँ और यहाँ पे हाइड्रोजन इस तरीके से. सो दिस इज द एक्लिप्स्ड फॉर्म. आप नीचे देखो, ये रहा एक्लिप्स्ड फॉर्म. और अगर एंगल 60 डिग्री है हाइड्रोजन और CH3 में तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्टैगर्ड. एंड वापस से 120 डिग्री आया तो उसको क्या बोलेंगे? एक्लिप्स. सो इट लुक्स सिमिलर टू योर इथेन का स्ट्रक्चर, बट यहाँ पे जो एनर्जी है, टॉर्शनल एनर्जी है, दैट इज मोर, दैट इज 3.3 किलो कैलोरी पर मोल. क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा तकलीफ होगी एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल की तरफ जाने के लिए, बिकॉज CH3 इज अ बिगर ग्रुप, तो बॉन्ड रिपल्शन ज़्यादा होगा, इसलिए एनर्जी भी यहाँ पे क्या हुई? ज़्यादा. डन. Now this is very important, butane. Now butane में अलग अलग तरीके से आप न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला बना सकते हो. You have 4 कार्बन एटम्स. Let's say आपका फ्रंट कार्बन इज C1 एंड बैक कार्बन इज C2, तो आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखाई देगा. चलो मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ वापस से. यहाँ पे C1 एंड C2. तो C1 में क्या है? एक कार्बन है और उसके पास 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है. You have back carbon something like this. Back carbon में you have 2 groups, एक C2H5 है और 2 हाइड्रोजन है, तो C2H5 को आपको एक साथ लिखना है. समझ में आई बात? इस तरीके से. Let's say अगर C2 and C3 है तो ये स्ट्रक्चर एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बेटर होता है. You have CH3 and 2 हाइड्रोजन एटम्स. This is the second carbon central जो बना रहा हूँ. अभी back carbon is the third carbon, उसका ये CH3 HH. So this is how the eclipse structure would look like. Understood? तो आपको पहचानना है कि C1 C2 दिया है कि C2 C3 दिया है, किस तरीके से दिया है क्वेश्चन में, या C3 C4 भी दे सकता है. Always remember that. So this is the graph for butane. Right? Now ध्यान से देखिए. चलो नीचे जो है स्ट्रक्चर्स मैं उनके बारे में बात करता हूँ. सो पहला क्या है? फुल्ली एक्लिप्स्ड, मतलब CH3 के पीछे CH3 जो बल्कि ग्रुप है उसके कंपैरिजन से आप आंसर निकालोगे. ऑलराइट, सो यू हैव 2 CH3 ग्रुप्स. और यहाँ पे सेकंड स्ट्रक्चर क्या है? इफ यू लुक एट द सेकंड स्ट्रक्चर, इट इज गॉश या इसको स्क्यू भी बोलते हैं. मतलब CH3 कंप्लीटली ऑपोजिट नहीं हुआ है, उनमें थोड़ा सा एंगल बढ़ गया है, थोड़ा सा स्टेबल हो गया है मॉलिक्यूल.
ना थर्ड स्ट्रक्चर आप देखो तो CH3 जो है हाइड्रोजन के बाजू में है, सो इट विल बी कॉल्ड एज पार्शियली एक्लिप्स्ड। एंड नेक्स्ट देखो तो CH3 कंप्लीटली ऑपोजिट हो गए, मतलब दे आर स्टैगर्ड। स्टैगर्ड मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा, एक्लिप्स में स्टेबिलिटी लेस होता है, स्टैगर्ड में स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसको हम एंटी भी बोल सकते हैं। वापस से ये क्या आ गया, पार्शियली एक्लिप्स्ड, वापस से गॉश आ गया और वापस से फुल्ली एक्लिप्स्ड आ गया। सो लेट्स अंडरस्टैंड द ग्राफ नाउ। सो फुल्ली एक्लिप्स्ड है मतलब CH3 ओवरलैप कर रहा है तो हाईएस्ट एनर्जी होगा, इजंट इट? अच्छा मुझे बताओ लोएस्ट एनर्जी किसका होगा? लोएस्ट जो एंटी है, इजंट इट? एंटी में तो कंप्लीटली ऑपोजिट है, बॉन्ड्स बहुत ज्यादा दूर है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो 180 डिग्री में सबसे ज्यादा स्टेबल है और सबसे ज्यादा अनस्टेबल यहां पर है। क्लियर? अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप खुद सोचिएगा, गॉश में एंड पार्शियली एक्लिप्स्ड में स्टेबल कौन सा होगा? एक्लिप्स्ड में तो स्टेबल नहीं होगा ना, तो गॉश में ज्यादा स्टेबल हो सकता है, इसलिए गॉश में थोड़ा सा एनर्जी लोअर है एज कंपेयर टू योर पार्शियली एक्लिप्स्ड। बात समझ में आ रही है? सो दिस इज हाउ द ग्राफ विल लुक लाइक। क्लियर? तो अगर आप एकदम लोअर लेवल से लेके एकदम लोअर लेवल से लेके एकदम हाईएस्ट लेवल पे जाओ तो कितने कैलोरीज का डिफरेंस है? 5 कैलोरीज का डिफरेंस है, 5 किलो कैलोरीज रैदर, नॉट 5 कैलोरीज, 5 किलो कैलोरीज पर मोल। और सिर्फ लोअर से लेके सिर्फ अगर आप ये कौन सा स्टेज बोल सकते हैं इसको, पार्शियली एक्लिप्स्ड, वहां तक जाओगे तो 3.6 और नेक्स्ट लेवल इज व्हाट? नेक्स्ट लेवल इज योर गॉश तक जाओगे तो सिर्फ 0.9 किलो कैलोरीज का डिफरेंस है। दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर। गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द स्टेबिलिटी ऑर्डर? सबसे पहले तो स्टैगर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद में गॉश एंड स्क्यू एंड लास्ट में क्या होगा? एक्लिप्स्ड। उसमें भी और डिटेल में बात करें तो स्टैगर्ड कौन सा? जो कंप्लीटली एंटी है, उसके बाद में गॉश या स्क्यू, उसके बाद में पार्शियली एक्लिप्स्ड और लास्ट में सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा होगा? फुल्ली एक्लिप्स्ड होगा। सो रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। स्टेबिलिटी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में ना, ये क्वेश्चंस भी काफी आते हैं एग्जाम में। आपको दिया होगा लेट्स से इथिलीन क्लोरोहाइड्रिन, IUPAC name is 2-chloroethanol. So you have 2 carbon atoms, फर्स्ट कार्बन पे OH है, सेकेंड कार्बन पे क्लोरो है। तो लेट्स से जो फर्स्ट कार्बन है दिस इज द फ्रंट कार्बन, तो इसका OH मैंने ऊपर बनाया है और Cl एग्जैक्टली उसके पीछे है, मतलब एक्लिप्स्ड है। सेकेंड मैंने क्या बनाया है? स्क्यू बनाया है और थर्ड बनाया है एंटी। तो बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने ब्यूटेन में पढ़ा है कि CH3 एंटी पोजीशन में होंगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो वो एंटी को मार्क कर देते हैं। बट यहाँ पे व्हाट वी नीड टू रिमेंबर इज, यहाँ पर Cl और H के बीच में हल्का सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वैसे तो फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, बट क्लोरीन थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा सकता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके वजह से इट इज द मोस्ट स्टेबल। सो एग्जैक्टली एक के पीछे एक होंगे तो बॉन्ड बना नहीं पाएंगे क्योंकि बॉन्ड लेंथ ही नहीं होगा ज्यादा, फिर तो उनको स्क्यू लेवल पे आना पड़ता है। क्लियर? सो स्क्यू गॉश इज मोर स्टेबल यहाँ पर ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेम विथ इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल में भी जब OH स्क्यू में आते हैं तो क्या होता है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस केस में स्क्यू इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू एंटी। तो ध्यान रहे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना आ जाए स्टेबिलिटी में, तो वहां पे स्क्यू ज्यादा स्टेबल होगा। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट साइक्लोअल्केन्स। सो नाउ साइक्लोअल्केन्स में स्टूडेंट्स, if I give you a cyclopropane let's say and cyclobutane, cyclopentane, cyclohexane and cycloheptane, so which one is more stable? So इसका आंसर कैसे मिलेगा? अकॉर्डिंग टू बेयर्स स्ट्रेन थियरी, जो भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं तो उनका बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109.5 डिग्री। तो इफ यू सी ऑल दी कार्बन एटम्स हियर आर सिंगली बॉन्डेड, मतलब वो क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है हर एक में, यहाँ पे जितने भी स्ट्रक्चर्स बनाए हमने। तो sp3 है तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 109.5 डिग्री। बट इसमें कितना है? 60 डिग्री है, बहुत ज्यादा दूर है। होना कितना चाहिए? 109.5 डिग्री। 90 अभी भी दूर है, 108 इट्स वेरी क्लोज। अगेन 120 ज्यादा दूर चला गया है, 128 तो बहुत ही दूर है।
तो if you see, cyclopentane should be the most stable cycloalkane, but cyclohexane is actually the most stable cycloalkane. अरे सर ऐसा कैसे हो गया? Because sp3 should be 109.5 डिग्री, cyclopentane जो है वो तो काफी क्लोज है, वो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए. Then why cyclohexane is more stable? Let's understand. The mistake which Bayer made was the assumption that all cyclic compounds are planar. देखो साइक्लोप्रोपेन जो है वो प्लेनार है, बट जरूरी नहीं है कि हर एक साइक्लिक कंपाउंड प्लेनार हो. What cyclic compound does is they twist and bend in order to attain a structure that minimizes angle strain, torsional strain and steric strain. तो तीन तरीके के strain है, angle strain, torsional strain and steric strain. तो मैं इसको ATS की तरह याद रखता हूँ, आप भी याद रखिए, बहुत बार ये आगे रिपीट होने वाले हैं. तो क्या क्या है? angle strain, torsional strain and steric strain. स्टेरिक स्ट्रेन क्यों होता है हम सबको पता है. अगर बल्कि ग्रुप्स एक दूसरे के आजू बाजू में आ जाता है तो स्टेरिक स्ट्रेन होता है. तो स्टेरिक स्ट्रेन इज कॉज्ड बाय एटम्स और ग्रुप्स अप्रोचिंग ईच अदर टू क्लोजली, राइट? सो नाउ कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन. A planar cyclohexane ring would experience angle strain. And angle strain क्यों experience करेगा? Because उसमें angle कितना है? 120 डिग्री, जो कि होना कितना चाहिए था? 109.5 डिग्री. As well as it will have torsional strain. तो हमने जो डिस्कस किया था ATS, उसमें से A और T ये एक्सपीरियंस करेगा, that is angle strain and torsional strain. Torsional क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन अलाइंड है या eclipsed फॉर्म में होता है. So if you see this structure, cyclic structure of cyclohexane, cyclic structure of hexane, that is cyclohexane, internal bond angle is greater than 109. इसके वजह से क्या आ रहा है? angle strain. और यहाँ पर क्या आ रहा है? torsional strain because of eclipsed structure. Next. So exactly कौन से फॉर्म में exist करता है? It exists in puckered conformation, या फिर उसको हम लोग बोल सकते हैं chair form, which is the most stable form. So यहाँ पर जब हमने एंगल निकाला तो हमें एंगल कितना आया? 109.5 डिग्री. ओ वाओ, तो मतलब यहाँ पे कोई एंगल स्ट्रेन नहीं होगा. एज वेल एज यहाँ पे हाइड्रोजन जो भी है सारे क्या है? स्टैगर्ड है. स्टैगर्ड है मतलब यहाँ पर टॉर्शनल स्ट्रेन भी नहीं होगा. तो जो दो तकलीफ थी साइक्लिक या प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन में, उसमें A और T की तकलीफ थी, दैट इज एंगल स्ट्रेन एंड टॉर्शनल स्ट्रेन. वो तकलीफ तो यहाँ पे निकल गई, राइट? एंड दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ द न्यूमैन स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन. So it eliminates angle strain. All carbon bond angle is 109 degrees, so it eliminates torsional strain. Or it also eliminates torsional strain because all hydrogens are staggered and not eclipsed. Now let's understand this chair and board conformation in detail. First let's understand the chair conformation. So 3 carbon is up and 3 carbon is down. For example, ये जो dark highlighted carbon atoms है, ये क्या है? These are up carbons which are facing upwards and बाकी के 3 क्या है? Facing downwards. And 3 dimension में देखें तो ये जो 3 कार्बन है ये हमारी तरफ आ रहे हैं. Okay, they are pointing towards ourselves. These atoms are in front. Now यहाँ पे 2 different valencies हम बोल सकते हैं. One is axial and second one is equatorial. Axial क्या है? It is located above and below the ring. मतलब वो क्या है? Perpendicular है. Equatorial, it is located in the plane of the ring. जैसे ये अगर axial देखे, ये आप सीधा vertical line दिखाई दे रहा है, so आपका axial हो गया. यहाँ पे देखो तो ये भी वर्टिकल लाइन दिखाई दे रहा है बट इट इज फेसिंग डाउनवर्ड, तो ये आपका एक्सियल हो गया. और जो इस तरीके से है, जो वर्टिकल नहीं है, जो प्लेन में है, उनको क्या बोलेंगे? इक्वेटोरियल. जो वर्टिकल नहीं है उनको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वेटोरियल. तो अगर मैं आपको बोलूं एक्सियल हमेशा अप होगा, तो इज दैट ट्रू? नहीं, अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है. If I ask you, equatorial will always be up. So is that the right statement? No. Equatorial देखो यहाँ पे up है और यहाँ पर क्या है? Down है, right? So दोनों cases हो सकते हैं यहाँ पर. So always remember this. Ring flipping. Now this is very important to understand cyclohexane का structure in detail. तो अगर आप ring flip कर रहे हो
तो ये कौन सा फॉर्म है? चेयर फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है? अगेन दिस इज चेयर फॉर्म। बीच वाला जो फॉर्म है दैट इज बोट फॉर्म। क्या हो रहा है, आप इस कार्बन को पकड़ के ऊपर की तरफ फ्लिप कर रहे हो, तो ये रहा ये कार्बन। अब इस कार्बन को पकड़ के नीचे की तरफ फ्लिप करो, तो ये रहा वो दूसरा कार्बन। सो यहाँ पे क्या लिखा है? एन अप कार्बन बिकम्स द डाउन कार्बन, अ डाउन कार्बन बिकम्स द अप कार्बन। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, एक्सियल हाइड्रोजन बिकम्स इक्वेटोरियल हाइड्रोजन एंड इक्वेटोरियल हाइड्रोजन बिकम्स एक्सियल हाइड्रोजन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया, रिंग फ्लिपिंग करेंगे तो क्या एक्सियल एक्सियल ही रहेगा? नहीं, एक्सियल बिकम्स इक्वेटोरियल एंड इक्वेटोरियल बिकम्स एक्सियल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, boat conformation. Now let's have a look at this. Boat conformation, it is actually destabilized by torsional strain. क्यों? क्योंकि जो 4 कार्बन एटम है उसमें हाइड्रोजन एटम क्या हो जाते हैं? एक्लिप्स्ड। एज वेल एज इसमें स्टेरिक स्ट्रेन आ जाता है। अब याद करो, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर था, जो प्लेनार स्ट्रक्चर था, उसमें एंगुलर स्ट्रेन था एंड टॉर्शनल था। ये जो बोट कॉन्फॉर्मेशन है, pardon me this, okay, so जो बोट कॉन्फॉर्मेशन है इसमें क्या हो रहा है? इसमें टॉर्शनल हो रहा है और स्टेरिक हो रहा है। तो ये चीज याद रखने लायक है। स्टेरिक स्ट्रेन क्यों हो रहा है? बिकॉज 2 हाइड्रोजन एट ईदर द एंड ऑफ द बोट, those hydrogens are called as flagpole hydrogen, are forced close to each other. देखो ये वाला जो कार्बन है, ये जो नीचे के 4 कार्बन है, 1 2 3 4, इनमें हाइड्रोजन क्या है? एक्लिप्स्ड में है, इसलिए कौन सा स्ट्रेन आ रहा है? टॉर्शनल स्ट्रेन, राइट। एंगल स्ट्रेन नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड एंगल तो 109 डिग्री, इसलिए एंगल स्ट्रेन नहीं आ रहा है बोट में। ये जो 2 हाइड्रोजन है, ये वाला और ये वाला, ये काफी नजदीक आ जाता है, इनको हम लोग बोलते हैं फ्लैगपोल हाइड्रोजन, और उसके वजह से क्या आता है? स्टीयरिक स्ट्रेन आता है। सो एज कंपेयर टू चेयर, बोट कॉन्फॉर्मर इज लेस स्टेबल। मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, मैं ज्यादा अपने आप को स्टेबल या सेफ कहाँ पे महसूस करूंगा? घर में चेयर में कि समुद्र में किसी बोट में? चेयर में ना, तो चेयर इज मच मोर सेफर या स्टेबल एज कंपेयर टू द बोट। दिस इज हाउ आई रिमेंबर। नेक्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट ट्विस्ट बोट कॉन्फॉर्मेशन। बोट कॉन्फॉर्मेशन actually exist as a slightly skewed, that is the twisted boat conformation. क्यों हो सकता है? बोट से ज्यादा स्टेबल वो हो, इसलिए वो थोड़ा सा ट्विस्टेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्यों? ऐसा क्या रीजन है कि ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाती है ट्विस्ट करने पे? फ्लैगपोल हाइड्रोजन मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। अगर दूर चले गए तो स्टूडेंट्स क्या होगा? कौन सा स्ट्रेन कम हो जाएगा? स्टीयरिक स्ट्रेन डिक्रीज हो जाएगा ना, राइट। और अगर आपको चेयर से ट्विस्ट बोट में जाना है तो कितने किलो कैलोरीज लगेंगे? 5.5 किलो कैलोरीज। एंड दिस इज हाउ योर ट्विस्ट बोट लुक्स लाइक। मैंने यहाँ पे एटम्स को हाईलाइट भी किया है ताकि आपको समझ में आए कौन सा एटम कहाँ पर है, राइट। आपको इसको ट्राई करना पड़ेगा 1-2 बार बुक में, तो ही आपको समझेगा। एल्स ये तो स्लाइड्स है, स्लाइड्स में आप एक बार देख लोगे, देखने से नहीं समझेगा, आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ता है ना। दिस इज अ ग्राफ, हो सकता है थोड़ा सा डल है, मैं इसको वापस से हाईलाइट कर देता हूँ। दिस इज द ग्राफ, राइट। अगर आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं एज कंपेयर टू योर प्रीवियस इथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है यहाँ पे? चेयर। चेयर इज मच मोर स्टेबल। लीस्ट स्टेबल कौन सा है जिसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया था? हाफ चेयर, दैट इज लीस्ट स्टेबल। देखो यहाँ पे भी हाफ चेयर आ गया, लीस्ट स्टेबल। और यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल क्या है? चेयर। तो देखो यहाँ पे मैंने सीक्वेंस लिखा है, चेयर इज मच मोर स्टेबल, राइट। चेयर के बाद क्या आता है? हाफ चेयर। हाफ चेयर के बाद ये वाला जो पॉइंट है एंड ये वाला जो पॉइंट है, ये किसको डिस्कस करता है? यहाँ पे अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज ट्विस्ट बोट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट इसको? ट्विस्ट बोट। याद करो, बोट ज्यादा स्टेबल है कि ट्विस्ट बोट? ट्विस्ट बोट ज्यादा स्टेबल है क्योंकि फ्लैगपोल हाइड्रोजन दूर हो जाता है, राइट। तो बोट यहाँ पर ऊपर चला गया। एंड दिस इज हाउ द ग्राफ लुक्स लाइक।
अगर एकदम बॉटम से लेकर टॉप तक एनर्जी डिफरेंस देखें तो 10 किलो कैलोरीज का है, उसके बाद में 6.9 का है, उसके बाद में 5.5 किलो कैलोरीज का डिफरेंस है। सो वापस से चलो एक बार रिपीट करते हैं। सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या है? चेयर। और सबसे लीस्ट स्टेबल क्या है? हाफ चेयर। क्लियर है? चलो फैंटास्टिक। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे, दैट इज सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। आई विल रीड आउट इफ द इमेज इज लिटिल डल। इक्वेटोरियल पोजीशन इज मोर स्टेबल। ये आपके दिमाग में आप फिट कर लो। इक्वेटोरियल पोजीशन ज्यादा स्टेबल होता है देन एक्सियल। क्यों? आगे डिस्कस करेंगे। Therefore, large substituents are more stable in equatorial position. In equatorial positions, bonds are away from the ring. They are away from the ring and hence less or no steric hindrance. तो इक्वेटोरियल पोजीशन ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू एक्सियल। नेक्स्ट, जैसे यहाँ पर मैंने साइक्लोहेक्सेन जो कि चेयर फॉर्म था, उसके ऊपर मैंने CH3 डाला है ना। दिस CH3 अगर आप देखो एक्सियल पे नहीं है, किस पे है? इक्वेटोरियल पे। बट यहाँ पर अगर आप देखो तो एक्सियल पे है, इसीलिए 95% ये फॉर्म किस में होता है? इक्वेटोरियल। ये मोर स्टेबल फॉर्म है, दिस इज लेस स्टेबल फॉर्म। क्यों होता है ऐसे? क्योंकि जब आप एक्सियल पे लाते हो तो ये जो CH3 है ये दो हाइड्रोजन के साथ इंटरैक्ट करता है, इनको बोलते हैं 1,3 डाई एक्सियल इंटरैक्शन। इसी की वजह से यहाँ पे दो डिस्टेबिलाइजिंग स्टेरिक इंटरैक्शंस होता है। ऑलराइट, इसलिए CH3 को इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखना इज मच बेटर एज कंपेयर टू एक्सियल। लेट्स टॉक अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। नाउ ये स्टूडेंट्स को इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है, कब इक्वेटोरियल आएगा, कब एक्सियल आएगा, कब अप रखना है, कब डाउन रखना है। बट डोंट वरी, अच्छे से इस PPT के नोट्स बनाइएगा, इस वीडियो के नोट्स बनाएगा, जिंदगी आसान हो जाएगी। नाउ सिस का मतलब क्या? या तो दोनों ग्रुप्स ऊपर होंगे या दोनों ग्रुप्स नीचे होंगे। सिस में एक्सियल इक्वेटोरियल का काम नहीं है, सिस में आप ऊपर एंड नीचे, अप या डाउन, ये चीज देखोगे। ट्रांस में क्या होगा? सेम चीज, एक ऑपोजिट डायरेक्शन में होगे, या तो एक अप होगा और दूसरा क्या होगा? डाउन होगा। Substituents are axial or equatorial depends upon the relative location of the two substituents. Now ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर यही समझा तो ही आगे की चीजें समझेंगे। Now यहाँ पर हर let's say this is carbon atom 1, this is carbon atom 2, this is carbon atom 3, this is 4, this is 5 and this is 6. जो मैंने U लिखा है, U का मतलब अप है, D का मतलब डाउन है। जैसे यहाँ पे देखो, ये डाउन है तो D लिखा हुआ है, ये अप है तो U लिखा हुआ है। A का मतलब एक्सियल है, इसी के बाजू में देखो A लिखा है मैंने, मतलब ये एक्सियल बॉन्ड है। E लिखा है, इसी के बाजू में A लिखा है, मतलब वो क्या है? इक्वेटोरियल है। ना पोजीशंस, पहले ये वाले पोजीशन के बारे में बात करते हैं, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2। अगर उसमें हमें सिस चाहिए तो क्या होना चाहिए? फर्स्ट कार्बन पे A, सेकंड कार्बन पे E। सर ऐसा क्यों? या तो दोनों अप होंगे या तो दोनों डाउन होंगे। चेक करते हैं। अभी फर्स्ट कार्बन एटम पे जो एक्सियल है वो डाउन है। चलो ऐसे समझते हैं, सिस में डाउन डाउन होना चाहिए, तो डाउन वाला क्या है? ये डाउन वाला क्या है? A है। और सेकंड कार्बन किधर गया है? ये ऊपर है। डाउन में क्या है? E है, तो AE। तो 1 2 पे अगर सिस चाहिए तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए? AE होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? 1 4 के बारे में बात करते हैं, 1 एंड 4। अभी 1 पे जो इक्वेटोरियल है वो अप में है E, तो फोर्थ पे अप कौन सा है? फोर्थ पे अप क्या है? एक्सियल है, तो AE। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या आना चाहिए? AE। बात समझ में आ रही है? तो इक्वेटोरियल और एक्सियल डिसाइड नहीं करता आपका सिस एंड ट्रांस, आपका सिस एंड ट्रांस अप डाउन डिसाइड करता है। उसके बेसिस पे आप देखते हो कि सिस है कि इक्वेटोरियल है कि एक्सियल है। वापस से चलो एक बार और देख लेते हैं, 1 3 पोजीशन को चेक करते हैं। उसमें चलो अब की बार ट्रांस देखते हैं। ट्रांस मैंने क्या बोला है? AE होना चाहिए। चलो A कहाँ पर है? 1 3 पे। 1 पे मैं डाउन कंसिडर करता हूँ और 3 पे मैं अप कंसिडर करता हूँ। तो 1 पे डाउन इज एक्सियल और 3 पे अप क्या है? इक्वेटोरियल है। तो AE आ गया ना, तो AE कॉन्फ़िगरेशन रखोगे तो आपको ट्रांस मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसको अच्छे से आपके नोट्स में लिखिएगा,
क्योंकि ये अगर चीज आती है तो ही आगे के क्वेश्चंस आपको समझेंगे। आगे बढ़े। एग्जाम में आया कि भैया ड्रॉ द स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांस 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है। ट्रांस का मतलब क्या, लेट्स से एक मिथाइल सॉलिड वेज पे है तो दूसरा मिथाइल डैश लाइन पे होना चाहिए, इसको बोलेंगे हम लोग ट्रांस। तो 1,4 पोजीशन बोला है, सो दिस इज फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट कार्बन, एंड दिस इज फोर्थ कार्बन। अब मैंने क्या किया है, एक CH3 को अप लिया है और एक CH3 को डाउन लिया है, मतलब मैंने ट्रांस फॉर्म में रखा है, क्योंकि ट्रांस ही तो पूछा है। बात समझ आ रही है। अभी एक को मैंने अप रखा तो कौन सा पोजीशन आ गया, इक्वेटोरियल आ गया। उसमें मैंने डाउन रखा तो क्या आ गया, इक्वेटोरियल आ गया, ई आ गया। इसको अगर मैं रिंग फ्लिप करता हूं तो इक्वेटोरियल एक्सियल बन जाएगा, अभी आप मुझे बताइए इक्वेटोरियल पे रखना बेटर है कि एक्सियल पे रखना बेटर है? इक्वेटोरियल ना, EE is much more stable than AA, इसीलिए the stable structure would be the first one। अभी बात समझ में आ रही है आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है? आप जब पोजीशन लगाओगे ट्रांस का अप या डाउन तो आपको देखना है कि EE आ रहा है, AA आ रहा है, EA AE क्या आ रहा है। जिसमें ज्यादा इक्वेटोरियल होगा वही आपका स्टेबल होगा, राइट। तो ये सेकंड वाला स्टेबल क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 4,4,1,3 डाई एक्सियल इंटरैक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से टॉर्शनल स्ट्रेन आएगा। इन शॉर्ट ऐसे याद रखना, इक्वेटोरियल पे होना चाहिए तो ये स्टेबल है। नेक्स्ट आपको बोला है ड्रॉ द स्टेबल फॉर्म ऑफ सिस 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अच्छा, उसके पहले मैं बता दूं, मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, इट हैज 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर, वन इज द स्टेबल फॉर्म, सेकेंड वन इज द लेस स्टेबल फॉर्म। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इट हैज ओनली 1 आइसोमर। अच्छा, सबसे पहले सिस के बारे में बात कर लेते हैं। सॉलिड वेज या तो डैश लाइन कैसे भी बना सकते थे। सिस का मतलब क्या, दोनों भी अप या दोनों भी डाउन। तो मैंने फर्स्ट पे CH3 को डाउन रखा है, फोर्थ पे भी CH3 को डाउन रखा है। जब मैं डाउन रख रहा हूं तो फर्स्ट पे एक्सियल आ रहा है और फोर्थ पे इक्वेटोरियल आ रहा है। अगर मैं रिंग को फ्लिप कर रहा हूं तो भी मुझे एक इक्वेटोरियल और एक एक्सियल आ रहा है। तो इफ आई आस्क व्हिच वन इज मोर स्टेबल, व्हाट इज योर आंसर? क्या आंसर होगा? सर दोनों भी स्टेबल है, क्योंकि एक इक्वेटोरियल एक एक्सियल दोनों में है, इसलिए सिर्फ एक ही आइसोमर पॉसिबल है विच इज इक्वली स्टेबल। बराबर, पहले में 2 क्यों था, वन वाज मोर स्टेबल, सेकंड वन वाज लेस स्टेबल। अब समझ में आ रहा है, अब थोड़ा आइडिया आ रहा है कैसे सिस ट्रांस को ड्रॉ किया जाता है। नेक्स्ट, ट्रांस 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ट्रांस बोला, अभी मैंने यहाँ पे लिखा है ओनली 1 स्ट्रक्चर। आप एक काम करो, नाउ यू जस्ट पॉज द वीडियो, आप खुद से एक बार ट्राई करके देखो। ओके, आई डोंट नो, वो तो आपने किया होगा। सो फर्स्ट कार्बन पे मुझे क्या बनाना है, ट्रांस। तो फर्स्ट कार्बन पे अगर मैंने अप लिया है CH3 तो फोर्थ कार्बन पे मुझे डाउन बनाना पड़ेगा। तो मुझे 1E और 3A आ रहा है, यहाँ पर मुझे 1A और 3E आ रहा है। तो दोनों में एक इक्वेटोरियल और एक एक्सियल है, सो इसीलिए मुझे एक ही स्ट्रक्चर आएगा। बराबर, सो इस तरीके से आपको ड्रॉ करके देखना है। सिस 1,3, अभी क्या पूछा है, 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसके पहले क्या था, ट्रांस 1,3 था, अभी है सिस 1,3। तो इसमें 2 कन्फर्मर्स आएंगे, उल्टा हो रहा है ना, अभी 1,4 और 1,3 में उल्टा हो जा रहा है। तो यहाँ पे जब मैं अरेंज करता हूँ तो AA आ रहा है, और यहाँ पे जब मैं अरेंज करता हूँ तो EE आ रहा है, राइट। सो दिस वन इज डेफिनेटली मोर स्टेबल। तो यहाँ पे 2 कन्फर्मर्स आएंगे, वन इज मोर स्टेबल, सेकेंड वन इज लेस स्टेबल। सो दिस इज हाउ स्टूडेंट्स यू हैव टू ड्रॉ। ट्रांस अगर 1,2 आ गया, राइट, तो देखो जब आप रिंग फ्लिपिंग करते हो तो एक में AA होता है, दूसरे में EE, तो डेफिनेटली ये वाला ज्यादा स्टेबल है स्टूडेंट्स, राइट। समझ में आ रहा है? तो आपको ड्रॉ करके देखना होगा, तभी आपको समझेगा कि एक कॉन्फॉर्मर आ रहा है कि 2 कॉन्फॉर्मर्स आ रहा है। सिस 1,2 में सिर्फ एक ही कॉन्फॉर्मर आएगा, क्योंकि AE है और EA है, एक इक्वेटोरियल है और एक एक्सियल है। नाउ दिस इज, अभी पहले क्या था, डाइमिथाइल था, अब मैंने क्या ले लिया है, 2-मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। तो यहाँ पे OH इन्वॉल्व हो गया है। ट्रांस बनाना ना, तो OH को मैं डाउन रख रहा हूँ और CH3 को मैं अप रख रहा हूँ। तब ऐसे करता हूँ तो AA आ रहा है मुझे, और रिंग फ्लिप कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे EE आ रहा है। तो दिस वन इज मोर स्टेबल।
क्लियर? अगर पहली बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको ई आ गया तो रिंग फ्लिप करने की जरूरत नहीं, वो ई वाला ही आपका ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि अगर रिंग फ्लिप कर दोगे तो ई से क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, दैट इज लेस स्टेबल. नाउ वी आर इन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पीपीटी ऑफ दिस वीडियो. सो कुछ एक्सेप्शंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं. अगर सिस 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल आया तो उसका मोर स्टेबल फॉर्म स्टूडेंट्स होगा 1E पे आप OH को रखो, 3E पे आप मिथाइल को रखो. यू हैव टू ड्रॉ दिस. ये मैं एक्स्ट्रा एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ यहाँ पे. ट्रांस 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल आया तो ये कॉन्फ़िगरेशन होगा. हेक्सेन 1,3 डायोल आया तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, 1 एंड ये 3. दोनों अगर नीचे है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं ना स्टूडेंट्स, बराबर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, तो इसके वजह से ये वाला फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है. बोट आया, अब ये 1,4 अगर देते तो बोट ज़्यादा स्टेबल होता. ओहो सर, यूजुअली तो बोट अनस्टेबल होता है, यस, बट इस केस में बोट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू चेयर. क्यों? बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्टेबिलिटी इज डोमिनेटिंग. आर यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट? सो ये सारे फैक्टर्स आपको देखने पड़ेंगे. लेट्स मूव अहेड. ट्रांस 1 इथाइल 3 आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, तो इसमें ज्यादा स्टेबल फॉर्म क्या होगा, 1 पोजीशन पे, वो भी एक्सियल पे आप इथाइल रखो, 3 पोजीशन पे इक्वेटोरियल पे किसी को रखो, आइसोप्रोपाइल ग्रुप को रखो. एंड यहाँ पे सिस 1,4 डाई टर्शियरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन है, तो आपको ऐसा वाला स्ट्रक्चर जिसको क्या बोलेंगे, ट्विस्ट बोट स्ट्रक्चर. दिस इज हाउ यू हैव टू ड्रॉ. तो अगर एग्जाम में आया कि ट्विस्ट बोट का एक एग्जाम्पल बताओ एक मॉलिक्यूल का जो कि नॉर्मल चेयर से भी ज्यादा स्टेबल है, सो दिस इज द एग्जाम्पल. क्या बोलेंगे इसको, क्वासी ई कॉन्फॉर्मेशन, बराबर. तो देखो इसके पहले मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो बोट में ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू चेयर, तो आप उसका एग्जाम्पल क्या दोगे, साइक्लोहेक्सेन 1,4 डायोल. कोई अगर पूछे कि ट्विस्ट बोट में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो ये वाला आपका एग्जाम्पल होगा. अंडरस्टूड? सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, और मैंने हर एक चीज़ बेसिक से लेके डिटेल में भी डिस्कस किया है. आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग. इसके बाद वी विल बी टॉकिंग अबाउट फ्यू MCQs ऑफ कॉन्फॉर्मर्स, और उसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिससे इसको अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चंस में वो दिमाग में फिट हो जाए. अ लॉट ऑफ टाइम व्हाट हैपेंस इज वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बट वी are not able to apply those information in the MCQs, बराबर. तो हम दोनों चीज करते हैं. आई होप आपने बहुत अच्छे से इसके नोट्स बनाए होंगे. लेट्स टॉक अबाउट MCQs in the next video.